Good afternoon. Myself Santosh Yadav and I welcome to all of you in lecture kinematics of class 11. Basically, kinematics is the branch of science in which we study about effect on particle. Like acceleration, velocity, displacement, etc. Kinematics is the branch of the science in which we study about effect on particle like acceleration, velocity, displacement है basically motion of the particle you can say here. तो ऐसे समझो आप कि पार्टिकल पे इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं. इफेक्ट पहले पढ़ लेते हैं और इसका कॉज बाद में पढ़ते हैं, विच इज स्टडी इन NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ काइनेमेटिक्स. बेसिकली काइनेमेटिक्स इज द इफेक्ट ऑन द पार्टिकल, कि उसका क्या एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या पोजीशन है, क्या इफेक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, इसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं. और इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, उसको हम लोग NLM में पढ़ते हैं. क्लियर? There are different terms like displacement, what is the displacement here? Basically displacement is the minimum path length between initial point to final point. Minimum path length between initial and final point. Displacement is minimum path length between initial and final point. Okay? And displacement may be positive, may be negative, may be zero. Displacement may be positive, may be negative, may be zero. It is a vector quantity basically. Okay? तो इसको ऐसे समझोगे आप, नोट कर लिया? इसको ऐसे समझो. देखिए, सपोज A and B are 2 points and you travel like that. First path, second path and third path. Suppose this is 20 meters. What is the displacement in first path, second path and third path? फर्स्ट पाथ में कितना होगा
तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम पाथ लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताइए सेकेंड पाथ से ज़्यादा मिनिमम कोई पाथ हो सकता है क्या ए बी के बीच में? नहीं हो सकता। इसका मतलब है सेकेंड पाथ ही डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो फर्स्ट पाथ एक्चुअल पाथ ये है, कोई बंदा अगर ऐसे भी चल रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी होगा 20 मीटर। ऐसे भी चल रहा होगा तो भी 20 मीटर, ऐसे भी चल रहा होगा तो भी 20 मीटर। उसके पास एक्स्ट्रा प्रीमियम है, पेट्रोल बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके चल रहा होगा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम पाथ लेंथ है स्ट्रेट लाइन, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन ईच एंड एवरी पाथ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल। सो मिनिमम पाथ लेंथ इज ए बी, सेकेंड पाथ ही मिनिमम पाथ लेंथ है और उसकी डिस्टेंस 20 मीटर है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्टेंस की। Distance. What is distance here? Distance is actual path length traveled by the particle. Actual path length traveled by particle. Displacement, minimum path length between initial point and final point. Okay, and distance is actual path length of the particle traveled. ठीक? अब distance always positive, never negative, always positive. Remember that. Distance is always positive. Displacement may be positive, may be negative, may be zero, but distance is always positive. ठीक है? Actual path length is called distance, and the minimum path length between initial point and final point is called displacement. यानी initial point को final point से straight line से मिला दोगे तो वो displacement होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे। girl travels in the square path complete 3.5 revolution outside A. Find distance and displacement. S distance, V displacement. Listen, this is the square path of side A. Length भी है और width भी है, ठीक है। And girl circulate in square path and complete 3.5 revolution, 3.5 चक्कर लगाती है। तो what is the distance traveled by the girl and what is the displacement traveled by the girl?
ओके, आपको 2 मिनट का समय देते हैं एंड यू जस्ट ट्राई इट। अगर ऐसे चल रही है तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। तो सोचो यहाँ से स्टार्ट करा उसने चलना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा 4 ए ए ए ए। 1 रिवोल्यूशन में 4 है, 2 रिवोल्यूशन में 8 है, 3 रिवोल्यूशन में 12 है, 3.5 मतलब इनिशियल ये था, फाइनल ये। यहाँ से चलना चालू करा, सोचो 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 3.5 रिवोल्यूशन, मतलब फाइनली यहाँ पहुँचे। तो सोचो वो पहले रिवोल्यूशन में 4 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है, 12 है और आधा और 2 है और यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इज 14 मीटर, अगर यूनिट मीटर है तो। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल को फाइनल से मिला दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज राइट एंगल, तो पाइथागोरस लगा दीजिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2a स्क्वायर मतलब a रूट 2 हो जाएगा, a रूट 2। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ जैसे जैसे लड़की गई है वैसे वैसे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, यही मिनिमम पाथ लेंथ होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? Listen, distance, displacement. Now move on velocity, speed. What is the velocity? Displacement travel in unit time. Speed, distance travel in unit time. बेसिकली कि 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करी पाएगी। वैसे सोचो इन t टाइम d डिस्प्लेसमेंट और इन 1 सेकेंड d by t डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड velocity of the body. Write it down. Displacement traveled by the body in unit time is called velocity of the body. Suppose in t time body travel t displacement, so in unit time body will travel t by t displacement. So displacement का formula velocity का formula displacement upon time होगा और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यू कैन राइट हियर, इसको हम लोग बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज टाइम इंटरवल।
दिस इज टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एंड स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, स्पीड वेक्टर स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है। स्केलर का संबंध स्केलर से, वेक्टर का संबंध वेक्टर से। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी कर रहे हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? इसी तरह एवरेज स्पीड भी कर सकते हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑब्लिक एवरेज स्पीड? लिसन, write down average velocity is not real। ऐसे समझो आप, सपोज आपको गोला से दिल्ली जाना है, 1000 किलोमीटर का रन है सपोज। और आप 10 घंटे में पहुंच जाते हो कार से, तो सोचो आपका स्पीड कितना होना चाहिए कंटिन्यूअस? क्या 1000/10 100 किलोमीटर पर आवर। एवरेज को बनाने का तरीका ये है, पोपचा एवरेज, मतलब ऐसे साइन बना के बी अंदर ले लो। अगर गोला से दिल्ली 1000 किलोमीटर है और आपकी कार 10 घंटे में पहुंच जा रही है, तो ऐसे सोचो अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लगातार मेंटेन करके चलें तो दिल्ली 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो दिस 100 किलोमीटर पर आवर इज़ कंसीडर्ड एज एवरेज स्पीड ऑफ द कार। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि आप 100 किलोमीटर पर आवर का कांस्टेंट स्पीड लगातार बनाए रख सकते हो गोला से दिल्ली तक? क्या वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा? भीड़ होगी तो रुकना पड़ेगा आपको, हाईवे होगा तो तेज़ चलना पड़ेगा। तो अलग अलग मोमेंट पे आपकी स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट स्पीड तो हो नहीं सकती। इट इज़ नॉट रियल, सो एवरेज स्पीड इज़ नॉट रियल स्पीड। तो अगर ये हाइपोथेटिकल है, अगर हम ये मान लें कि सड़क सुनसान है, कोई भी उसमें ट्रैफिक नहीं है और आइडियल कंडीशन है और आप कांस्टेंट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो आप दिल्ली 10 घंटे में पहुंच गए। तो ये जो 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड आपने मेंटेन रखी है दिल्ली तक पहुंचने के लिए, दिस स्पीड इज कंसीडर्ड एज एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बट रियलिटी में ऐसा हो संभव है ही नहीं, क्योंकि तो ट्रैफिक होगा, कहीं चाय पानी पीने के लिए रुकोगे भी तो अलग अलग मोमेंट पे आपकी कार की स्पीड अलग अलग होगी। दैट इज़ रियल स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ अ रियल स्पीड, बट एवरेज स्पीड इज़ नॉट रियल स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, प्रोवाइडेड टाइम इंटरवल इज नॉट स्मॉल। टाइम इंटरवल छोटा नहीं होना चाहिए। क्लियर? एवरेज का मतलब तो समझ गए हो, ठीक है, नोट कर लो। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है, तो फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया? यही हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।